ایک ایمبولینس بھی چاہیے، ایک میت بس بھی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں یہ کام سب خانہ بنایا گیا ہے، اور یہ 5 منزلہ بلڈنگ کے اوپر تعمیر ہوگا۔ اگر یہ گراؤنڈ فلور چل گیا، چالو کر دیا ہم نے، فعال کر دیا، تو انشاءاللہ العزیز آگے چل کر یہ 5 منزلہ جو ہے سب خانہ ہو جائے گا۔ اس کی فاؤنڈیشن جو رکھی گئی ہے وہ 5 منزلہ بلڈنگ کے حساب سے رکھی گئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز بڑی امید ہے، مجھے امید یہ ہے کہ آپ لوگوں کا تعاون جاری رہا اور آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تو یہ انشاءاللہ عید کے بعد چالو کر دیں گے اس کو بھی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا موجودہ جامعہ سلیم ہے اس کے اوپر ہماری خواتین، ہمارے بچیاں، ہماری لڑکیاں جو یہاں طلبات جو آتی ہیں ان کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے۔ ہم مدرسے کے بچوں کو تو یہاں بٹھا سکتے ہیں مسجد کے اندر، لیکن جو بالغ لڑکیاں ہیں ان کو تو یہاں نہیں بٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے ہمارے لیے کہ ایک ایڈیشنل فلور ہم بنائیں، اس جو موجودہ عمارت ہے اس پہ ایڈیشنل فلور چڑھائیں، اس کو 1 منزلہ اور کریں تاکہ اس کے اندر 5 کلاسیں جو ہے ہماری بن جائیں گی۔ اس کے اندر 5 کلاسیں بننے کے بعد جو ہے ہماری لڑکیوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے اندر بھی آپ کا تعاون درکار ہے۔ اس کے اندر جو ہے تقریباً سارا خرچہ وتھ فنیشنگ، مٹیریل، چھت، وقت سب ملا کے جو ہے 62,63,922 روپے کا خرچہ ہے اس کے اندر۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے اندر جو صاحب سریا، سیمنٹ، بجری جو چیز دینا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں، انتظامیہ سے رابطہ کریں، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے رابطہ کریں، امام صاحب سے رابطہ کریں، تاکہ یہ جلد سے جلد ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں، تاکہ جو ہماری خواتین، ہماری بچیوں کا مسئلہ ہے بیٹھنے کا اور پڑھنے کا وہ مسئلہ حل ہو سکے۔ دوسری ایک گزارش اور یہ تھی کہ علاقے کی ضرورت اور لاٹھی کورنگی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، اور ہمارا تو گلشن حدید بھی ہمارے ساتھ لگتا ہے، دوسرے علاقے بھی لگتے ہیں، خیر آباد بھی لگتا ہے، ہمارے جامعے کے اندر جو 750 طلبہ اس وقت آتے ہیں وہ دور دراز علاقوں سے بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ گلشن حدید سے بھی آتے ہیں، کورنگی انڈسٹریل ایریا سے بھی آتے ہیں، کورنگی سے بھی آتے ہیں، ملیر سے بھی آتے ہیں، اس ہر جگہ سے ہمارے وہاں بچے طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ طلبہ کو ہم، اور مزید اتنی تعداد بڑھ رہی ہے ہمارے پاس داخلوں کی کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہو گئی، جگہ ختم ہو گئی ہے۔ اب میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جامعہ حنفیہ عالمگیر جامع مسجد ٹرسٹ کی انتظامیہ نے یہ ایک جدید منصوبہ بنایا ہے، اور وہ منصوبہ عظیم الشان ہے جو ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتا ہوگا، اور یہاں پر ABCDEF بلاک تعمیر کیا جائے گا، جس کی تعمیر کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے 4,700 طلبہ پڑھ سکیں گے۔ 4,700 طلبہ، یہ کہنا ہے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ جب دیکھیں گے تو ایسا ہی ہوگا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ 4,700 طلبہ آپ کے، میرے بچے یہاں پڑھیں گے، آپ کے بچے پڑھیں گے، یہ سب لوگ یہی پڑھیں گے۔ آپ کو کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں یونیورسٹی میں جائیں گے، فلاں یونیورسٹی میں، یہ خود یونیورسٹی بننے والی ہے۔ اچھا، اب صرف ایک بات اور کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو اخراجات آئیں گے، اس کے اندر جو اخراجات آئیں گے 1,66 کروڑ روپے کا تخمینہ ہے، 1,66 کروڑ کا۔ ظاہر ہے اب میرا آپ سے ذمہ داری یہ لگاتا ہوں کہ آپ جو ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ خود بھی عمل درآمد کریں، اور ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپ کا دستے بازو بنے، اور دستے بازو بن کر آپ کے علاقے کے اندر، آپ کی مسجد کے اندر یہ ایک عظیم الشان یونیورسٹی قائم ہو سکے۔ دوسری ایک اور بات ہے، یہ جو ہے ہم نے اس سلسلے میں ایک کتابچہ بھی شائع کیا جس کو مزید تفصیلات معلوم کر رہی ہے وہ کہتا معلوم کر سکتا ہے، اور یہاں سے امام صاحب کے ممبر سے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے یہ حاصل کر سکتا ہے، تاکہ اس میں سارا کا سارا مواد موجود ہے، آپ کو کہیں بھاگنے کی دوڑنے کی ضرورت نہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7-6 تکبیر و زید کے منہ میرا قبلہ کی طرف، یہ میں کہوں گا، آپ میرے ساتھ دوہراتے رہیں گے۔ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ
सना पढ़ेंगे, फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाह अकबर कहकर यानी कानों पर हाथ ले जाकर हाथ बांध लेंगे, किरात होगी और किरात के बाद रकू सजूद होगा, रकू सजूद के बाद फिर खड़े होंगे, तो उसके बाद किरात होगी, किरात के बाद फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे एक, फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे दो, फिर अल्लाह अकबर कानों तक ले जाकर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, यानी 3 मरतबा। दूसरी रकात में भी जब अल्लाह अकबर कहेंगे तो हाथ कानों तक ले जाकर हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। फिर चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए हम रकू में बाहर आप सफे बनाए। बहुत शुक्रिया। पीछे करें। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हान मन नव्वरा क़ुलूबल आरिफीन बिसिराजिल हिदायति वल फुरक़ान व शरह सुदूरस साइमीन क़ाइमून शहर रमज़ान। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दीवार तक बाहर निकल जाए रज़ियल्लाहु तआला व अला अशजा'i शिजान मुतअबिल मसाकीन वल जियान अमीर المؤمنين علي المرتضى المستعان كرم الله تعالى وجهه وعلى الإمامين الفاضلين الكاملين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه الشريفين المكرمين بين الناس على حمزة بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع من رفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وأنطقه اللسان وعلمه البيان وعين عن الصيام من الشهر من شهور سنة شهر رمضان وأشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا
जी नाज़रीन, आज ईद उल फितर का दिन है और सुपर न्यूज़ पाकिस्तान आज मौजूद है मरकज़ अहले सुन्नत हनफी आलमगीर जामा मस्जिद के अंदर और ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी और मस्जिद के रूह रवा अलहाज सईद साबरी साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर के इज्तिमा के हवाले से, नमाज ईद के हवाले से, ईद की खुशियों के हवाले से, ईद के पैगाम के हवाले से ये क्या पैगाम आवाम को देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत ये मैंने जो गुजारिशात पेश किए हैं इस पे कुछ इज़हार ख्याल फरमाइएगा। जनाब वाला, जैसा कि आपने देखा और हमने भी देखा कि आज हनफी आलमगीर जामा मस्जिद ट्रस्ट बाबर मार्केट लांडी में एक अजीम शान ईद का इज्तिमा हुआ और इज्तिमा के अंदर हज़ारों अफराद शरीक हुए। और आज असल में हमने ये दुआ करनी चाहिए और करना भी चाहिए और की है कि मुल्क को लाक़ानूनियत से बचाने, मुल्क के अंदर जो है अदम इस्तेकाम को ख़त्म करने के लिए और मुल्क के अंदर जो है माशी पोजीशन बहाल करने के लिए हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज़ करें। इसके अलावा हमारे जान छूटने वाली नहीं है, क्योंकि इस वक्त मुल्क एक बहरान की कैफियत के अंदर है, एक बहरानी कैफियत के अंदर है। माशी तौर पर बदहाली फैली हुई है, लोग अब पैसे के लिए मोहताज हैं और यही वजह है कि आज आपने देखा बाज़ारों के अंदर वो रौनक नहीं थी, बाज़ारों के अंदर ख़रीदार नहीं थे। लेकिन आप क्या करें, हर शख्स की अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसके लिए वो कर्ज़ और उधार लेकर बाहर निकलता है और बाहर निकल कर जो है अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करता है। आज इस ज़रूरत इस अमर की है कि जिसमें हुक्मरान तबका है या जो सियासी जमातें हैं उनको चाहिए कि वो एक यकसुई के साथ मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जद्दोजहद करें ताकि अल्लाह का दीन यहाँ पर नाफिज हो सके और यहाँ पर जो है दीन मुस्तफ़ा की बालादस्ती होना चाहिए। और जब बालादस्ती दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी तो फिर सारी बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी और यहाँ पर खुशहाली आ जाएगी। अच्छा, ये फरमाइएगा, मस्जिद के हवाले से जो है ईद उल फितर का बड़ा ये अजीम शान इज्तिमा था और रमज़ान मुबारक के अंदर भी आपके प्रोग्राम आते, कुछ रोशनी डालेंगे आप? अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैं 38 साल से ये हनफी आलमगीर जामा मस्जिद ट्रस्ट के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और मैंने इस 38 साल के अंदर जो काम यहाँ किए हैं वो अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत कामयाब रहे हैं। गुजारिश ये है कि यहाँ पर ख़ास तौर पर दीगर तकरीबात तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक का रमज़ान मुबारक का महीना जो है बड़ी शान और शौक़त से मनाया जाता है। यहाँ पर हर तरफ जो है कुरान की धूम होती है, कुरान पढ़ा जाता है, बच्चों का शबीना होता है, औरतों का शबीना होता है। औरतों का शबीना आपने कहीं कहीं सुना होगा, लेकिन इस हनफी आलमगीर जामा मस्जिद के अंदर ख़वातीन का भी शबीना होता है। वजह यह है कि यहाँ पर जो हमारा जामिया सलीम लिल बिनात है वो बहुत अच्छे कारकर्दगी उसकी है और यहाँ पर वो हिफ्ज़ भी करती हैं, दीनी तालीम भी हासिल करती हैं, इसके साथ साथ आलमा कोर्स भी कर रही हैं और दरस निज़ामी भी पढ़ रही हैं। दरस निज़ामी की वजह से यहाँ उनके इनफरादियत हासिल है और इनफरादियत की वजह यह है कि वो अल्लाह के दीन से वाबस्ता हैं। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि क्या कहते हैं, जो आज ईद उल फितर का इज्तिमा था और माशाल्लाह जो है वो आवाम के अंदर एक खुशी की एक लहर होती है, तो इस हवाले से जो है कौम को क्या पैगाम देना चाहिए? हकीकत तो ये है कि ईद उल फितर है जो आती है हमारे लिए, जो खुशियों का पैगाम लेकर आती है, क्योंकि जो कुछ हमने किया होता है, जो हमने सब कुछ किया है उसका शुक्राना अदा करने का मौका होता है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ खैरियत से रमज़ान मुबारक गुजारा। हमने 30 तरावियाँ पढ़ी और 30 रोज़े रखे अल्लाह के फ़ज़ल से, और उसका शुक्र है कि उसने हमें रमज़ान अता किया और हमें इबादत और रियाज़त का मौका फ़राहम किया। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर हनफी आलमगीर जामा मस्जिद के अंदर जो लोग यहाँ से वाबस्ता हैं या वो हमारे साथ ताउन करते हैं, अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। पहले भी ये बात कही है कि सुपर न्यूज़ पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है
जो मजहबी तबकों को भी कवर कर रहा है, जहाँ दीगर तिजारती तबकों को कवर कर रहा है, वहाँ मजहबी तबकों को भी कवर कर रहा है। आज यहाँ आमद पर इनका मैं मशकूर हूँ, वसीम साहब का और इनकी टीम का जो यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने ईद की कवरेज की है, ईद के इज्तिमा को जो देखा उसको कवर कर लिया है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो है इसको अपने यूट्यूब के चैनल के जी नाज़रीन, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान मौजूद है इस वक्त मरकज़ अहले सुन्नत हनफिया आलमगीर जामा मस्जिद लांडी के अंदर, और हमारे साथ जामिया सलीम के जो मोहतमीम है और मारूफ आलिम दीन जनाब मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईद उल फितर का जो है आज इज्तिमा बहुत बड़ा अज़ीमुशान इज्तिमा मुनक्किद हुआ है। इस सिलसिले में ईद उल फितर के हवाले से, रमज़ान मुबारक के हवाले से कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे और कुछ इरशाद फरमाइएगा। सबसे पहले तो आपको वसीम भाई और आपके तमाम देखने वालों को, हमारे ख़ास तौर पे हमारे जो कैमरामैन भाई हैं हमारे, आप सबको दिल ईद मुबारक। और पैगाम सिर्फ यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बेशुमार नेमतें अता फरमाई। ये रमज़ान वो भी हुजूर के वसीले से मिला, कुरान वो भी हुजूर के वसीले से मिला, और जो ईद मिली वो भी हुजूर के वसीले से मिली। तो हमारी तमाम तर अक़ीदतों, मोहब्बतों और ईमान का महवर और मरकज़ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। पैगाम सिर्फ ये है कि अपने नबी के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत रखिए, चूँकि अल्लाह ने ऐसे अजीम व शान आका में अता फ़रमाए हैं जो ना सिर्फ इस दुनिया में हमारे हादी और रहनुमा हैं, बल्कि कल बरोज़ आखिरत जब कोई सहारा ना होगा, उस सब की अगर हमारा कोई मजबूत सहारा है तो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने का एक ही तरीक़ा है कि दिल में मोहब्बत के साथ साथ अमली तौर पर अपने नबी की जैसा करने की कोशिश करें। जैसा हुजूर ने बताया, जैसा हुजूर ने सिखाया, वैसे ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह हुजूर के साथ ताल्लुक़ मजबूत होता चला जाएगा। हुजूर का फरमान, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो हुजूर के करीब होने का यही एक वाहिद तरीक़ा है, और ईद के मौके पर यही सबसे बड़ा पैगाम है कि खुशियाँ मनाएं, मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म के मुताबिक। अल्लाह करीम इस ईद को अहले पाकिस्तान के लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए हकीकी तौर पर ईद और खुशियों का दिन बनाए। इस खुशी के मौके पर दूसरी अहम तरीन बात यह है कि इस मुल्क में ख़ास तौर पर ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान, जो कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है, और ये भी 27 रमज़ान में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फरमाया। इस मुल्क की अगर खुशहाली हम चाहते हैं, तरक्की और बेहतरी चाहते हैं, तो उसका एक ही राज है, और वह है निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली निफाज। अगर हम चाहते हैं कि पूरी उम्मत एक हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, मुत्तफिक हो जाए, तो वहदत का एक ही मरकज़ है, और वह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, और तरक्की का राज सिर्फ और सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निज़ाम के अंदर है। इसलिए इस खुशी के मौके पर हम सब ये अहद करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें कि अल्लाह पाक इस मुल्क में अमलन निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ फरमाए, और अपनी खुशी में अपने दुखियारी मुसलमान बहन भाइयों को लाजमी याद रखें। जहाँ तंगदस्ती है, परेशानी है, यतीमी है, बेआसरा लोग हैं, उनके साथ भी अपनी खुशियाँ बाँटें। गरीबों के साथ खुशियाँ बाँटना ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जामा मस्जिद हनफिया आलमगीर लांडी के ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सर फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईद उल फितर का दिन है, ईद उल फितर के मौके पे यहाँ पे बहुत अज़ीमुशान इज्तिमा मुनक्किद हुआ, बहुत बड़ा इज्तिमा मुनक्किद था, रूह परवर इज्तिमा था। और आज जो है मैं ये समझता हूँ जो मसाजिद थी उसके अंदर, कराची के अंदर सबसे बड़ा क्राउड जो था वो आज हनफिया आलमगीर जामा मस्जिद लांडी के अंदर था। और हमारे साथ मौजूद हैं ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब फरीद साहब, हम इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ईद उल फितर का दिन, और जो आवाम का जोश व खरोश, एक बहुत बड़ी तादाद लांडी में हनफिया आलमगीर जामा मस्जिद ट्रस्ट में देखने को मिली। और जिस तरह से गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पे एक मरकज़ी हैसियत में तमाम ईदों की जमात और नमाज की जाती है मुनक़्क़िद, मैं समझता हूँ कि बहुत यूनिक, बहुत मुनफरिद एक्सपीरियंस होता है, और बहुत सारे लोग कई सालों से मुस्तकिल मिजाजी के साथ यहाँ नमाज पढ़ते हैं। रमज़ान के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे रमज़ान में सबसे बड़ी तरावी हनफिया आलमगीर जामा मस्जिद ट्रस्ट में की जाती है, और लोग कराची के दूर दराज इलाकों से आते हैं और रूहानी सुकून और रूहानी फैज़ पाते हैं।
ہمارے مفتی خرم رحمانی صاحب کی سربراہی میں یہ تراویح منعقد ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد 27ویں شب میں جو کراؤڈ ہوتا ہے، جو روح پرور مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ ایک آپ اپنی دید ہے جو فیس بک لائیو پر نشر بھی کیا جاتا ہے، آپ احباب جا کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس طرح کے مواقع پورے سال مختلف انداز میں یہ ایکٹیویٹیز سرگرمیاں ہوتی رہتی ہیں، جس سے تمام لانڈی کے اور لانڈی سے ہٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں آ کر مستفیض ہوتے ہیں اور انگیج رہتے ہیں دینی ایکٹیویٹیز میں۔ میں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب الحاج محمد سعید صابری صاحب، پھر اس کے بعد امام صاحب، امام فیض رسول صاحب، اینڈ اس کے ساتھ ہمارے مفتی خرم رحمانی صاحب اور جملہ تمام ہمارے انتظامیہ کے لوگ جو انتھک محنت کے ساتھ چیزوں کو مینج کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھا ویلکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو ساتھ ہے اور کئی سالوں سے ہے، اس ساتھ دینے کی وجہ سے یہ انتظام بڑا بہترین انداز میں منعقد کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو مختلف شعبہ جات ہیں وہ خود لوگوں کی خدمت میں، کیونکہ یہ حنفی عالمگیر جامع مسجد صرف بڑی مسجد ہی نہیں، یہ ایک ویلفیئر ادارہ بھی ہے، لوگوں کی خیر خواہی سے لے کر لوگوں کی تعلیم تک، اور اس کے علاوہ جو مختلف آنے والے پروجیکٹس ہیں جو کہ بہت ریسنٹلی سرد خانہ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے لانڈی میں، اپنی نوعیت کا بہت یونیک اور اسٹیٹ آف دی آرٹ، آپ یہ کہہ لیجئے یہ ایک سرد خانہ ہے جس میں لانڈی کے لوگوں کو سب سے بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لانڈی میں قریب، اور کیونکہ لانڈی کے اپنے لوگوں کا، کراچی کے اپنے لوگوں کا بڑا ادارہ ہے جو لوگوں کی خدمت میں مسلسل جو ہے وہ مصروف ہے، تو میں ایک بار پھر مبارکباد دینا چاہوں گا حنفی عالمگیر جامع مسجد ٹرسٹ کی تمام احباب کی جو اپنی محبت کے ساتھ اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور یہ اس طرح کے پروگرامز کو کامیاب بناتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم مسجد کے جنرل سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہیں گے کہ اس مسجد کی کیپیسٹی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے اس مسجد کی اور دیگر کراچی کے اندر مسجد ہے، ذرا تھوڑا اس کا موازنہ بھی پیش کر دیں، اور یہاں پہ کتنی مسجد کے اندر جو ہے نا نمازی کی گنجائش تھی، اور جو باغ عالمگیر تک جو ہے نا نمازی جو ہے وہ موجود تھے، اور سپر نیوز پاکستان کی اسکرین پر آج باغ عالمگیر مسجد کے ساتھ ساتھ باغ عالمگیر تک جو اجتماع پہنچا ہوا تھا جو مسجد کی حدود کے اندر ہی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نا نماز عید ادا کی گئی ہے، وہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ہم اس وقت جو ہے ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مسجد کا احاطہ یہ کتنا ہے اور اس کی نمازیوں کی کیا گنجائش ہے؟ محترم جناب، حنفی عالمگیر جامع مسجد ایک عظیم الشان مسجد ہے، یہ 4.5 ایکڑ پر محیط ہے، اور اس کے اندر جو ہے 10,000 سے زائد افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جو آپ نے دیکھا کہ ہمارے مسجد کے حال سے لے کر ورانڈے سے لے کر صحن سے لے کر باغ عالمگیر تک انسان تھے، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ گیٹ کے باہر بھی لوگوں نے صف بندی کی ہوئی تھی، اور یہ صف بندی میرا وقت وہ بھی یاد ہے جب اس مسجد کے اندر جو ہے میرے پاس ایسی تصاویر بھی ہیں کہ اس جگہ کے اوپر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ مین روڈ تک جو ہے نمازی ہوا کرتے تھے۔ وہ تصاویر بھی میرے پاس موجود ہیں کہ مین روڈ تک پبلک ہوتی تھی۔ ظاہر کنسٹرکشن ہو گئی ہے اور بہت سی چیزیں، عمارتیں بن گئی ہیں، جس کی وجہ سے اب جو ہے ہمارے مین گیٹ کے باہر تک لوگ چلے جاتے ہیں، اور دور تک عین عباسی اسکول تک جو ہے اس کے اندر نمازی شریک ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم نے بچپن بھی یہاں سے گزارا ہے، بچپن میں بھی یہاں نمازیں پڑھی ہیں، آج بڑھاپے میں آ گئے ہیں جب بھی حنفی عالمگیر میں نماز ادا کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں استحکام پاکستان سوشل فورم کے بانی چیئرمین جناب انیس قریشی صاحب، جو عید الفطر کے اس موقع پہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے عید الفطر کے موقع پہ یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بہت مشکور ہوں سپر نیوز کا، جو اس وقت پورے پاکستان میں یہ سمجھ لیں کہ چھایا ہوا ہے، اور مذہبی تقریبات اور سماجی سیاسی تمام تقریبات میں سپر نیوز نے اپنا ایک بڑا مقام حاصل کیا ہے۔ اس کو آپ جیو اور سما سے بھی
برابر में देख सकते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में ये कवरेज कर रहा है। और ये समझ लें दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए इनकी जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, वो काबिल तहसीन हैं। और मैं आज इनके तवस्सुत से अपने तमाम इस्लामी भाइयों को बहुत दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि जैसे हमने माह रमज़ान मुबारक में अपने नफ्स पर काबू फरमाया और काबू किया और हमने रोज़े रखे, तरावी अदा की और अपने आप को शैतान से दूर रखा, तो आइंदा जो 11 महीने हैं उसमें हम इसकी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना मुकाम हासिल कर पाएंगे। और नौजवानों से खुसूसी दरख्वास्त है कि वो दीन की तरफ ज़्यादा राग़िब हो, क्योंकि दीन से ही जो है वो आखिरत की हमारी कामयाबी होगी। इस मौके पर मैं सुपर न्यूज़ को फिर मुबारकबाद देता हूं कि जिसने ये समझ लें कि बहुत अच्छा अंदाज़ किया है। और बाहर से भी मुझे फ़ोन आते हैं जो इनके क्लिप देखते हैं मेरे दोस्त अहबाब कि भाई सुपर न्यूज़ जो है वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो मैं इस पर तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके जितने भी एडिटर साहिबान हैं, डायरेक्टर साहिबान हैं, रिपोर्टर हैं, इनके फोटोग्राफर और जो कैमरामैन, तमाम को मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इस वक्त सुपर न्यूज़ के साथ शुक्रिया अदा करते हुए ये जुमला ज़रूर कहूँगा कि सुपर न्यूज़ इस वक्त सुपर हो गया है पूरे पाकिस्तान के, यानी कि कराची से लेकर खैबर तक और दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में बड़े पसंदीदा उससे देखा जा रहा है। मज़हबी तबका और समाजी तबका जो है वो उसको बड़ा अहमियत दे रहा है। और सुपर न्यूज़ के लिए बड़े लोग जो हैं बेताब होते हैं कि भाई इनकी जो है प्रोग्राम को देखा जाए और इनके जो भी मामलात पर ये आवाम से राब्ते में है उसको सुना जाए, तो उससे जो है लोगों को बहुत आगाही होती है और नौजवान भी इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं ईद उल फितर के मौके पर हमारी हनफिया जामा मस्जिद आलमगीर और जामिया सलीमिया के हवाले से अपने कुछ मालूमात आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूं कि जामिया हनफिया आलमगीर जामा मस्जिद जो है वो इस वक्त कराची की तकरीबन तीसरी बड़ी मस्जिद है, जिसमें बेवक्त जो है कम से कम 20 से 25 हज़ार नमाजी नमाज ईदैन और नमाज जुम्मतुल विदा वगैरह अदा करते हैं। और जो अलहाज मोहम्मद सईद खान साबरी साहब और इनकी टीम गुज़िश्ता 38 सालों से खिदमत अंजाम दे रही है, वो लोगों के सामने है और वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि जामिया सलीम भी इनकी सरपरस्ती में चल रहा है और ख़वातीन के लिए हाइव्स और उसकी क्लासें भी चल रही हैं। और यहाँ से बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में तलबा तालबात जो हैं वो अब दूसरे इदारों में जाके खिदमत अंजाम दे रहे हैं और तालीम के मामले को, बिलखुसूस कुरानी तालीम के मामले को दर्स निज़ामी में अपना मुकाम पैदा कर रहे हैं। और इसी के साथ एक बड़ी खबर यह है कि अब लांडी कोरंगी के अवाम की, बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अवाम की बड़ी ज़रूरत थी सर्द खाने की। उसके अंदर अलहाज सईद साबरी ने दिन रात एक करके अपने मिशन में अब कामयाबी हासिल कर ली है और कोई लम्हा जा रहा है कि वो इसका संग बुनियाद, इसका इफ्तिताह करने वाले हैं। और इसके लिए इनको एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है, एक मैयत गाड़ी की ज़रूरत है, जिसमें मुखिया हज़रात को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में अभी अलहाज मोहम्मद सईद खान साबरी ने गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी साहब को एक ख़त लिखा है और उनसे इस सिलसिले में मुलाकात का वक्त मांगा है, लेकिन वो अभी अपनी रमज़ान मसरूफियात के सबब टाइम नहीं दे सके। और उम्मीद करता हूँ कि वो पहली फुर्सत में मोहम्मद सईद खान साबरी हनफिया आलमगीर, जो कि कराची की बड़ी मस्जिदों में शुमार होती है, उसके वक्त को मुलाकात का टाइम देंगे ताकि ये अपने मसाइल से आगाह करें। और गवर्नर साहब जो कर सकते हैं वो इस मस्जिद के लिए अपनी तगोदो करके, अपनी जो भी ग्रांट है वो मंजूर करके इस मस्जिद के लिए अपनी आखिरत को संवारें। कैमरामैन हसानुल मुस्तफ़ा के साथ मोहसिन खान, वसीम खान, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान।